دو آقا ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر جنگجو ہیں، ایک کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام ہے داؤد۔ اس طرح سے مقابلہ کیا کہ پاشا محترم ہمارے بہت سے ساتھی جان سے چلے گئے۔ اس حملے کے بعد وہ خود کو محفوظ کرنا چاہیں گے لازمن۔ آ جاؤ۔ ملکہ۔ کون ہے یہ فرت آقا، جانتے ہو کیا تم؟ معلوم نہیں ملکہ، لیکن سوکلوں کے کہنے کے مطابق آقا کو آقاؤں کے متعلق معلومات فراہم کر دی گئی تھی، انتخاب اسی لحاظ سے کیا گیا ہے۔ اعلیٰ۔ جیسا کہ تم نے دیکھ لیا رستم پاشا، دشمن اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں باری باری خود ہی گر رہے ہیں۔ علی آقا مر چکا، فنیری زادے چلا گیا، باربروس کی بات کرو تو وہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ بحری بیڑے کی کمان ہمارے کسی آدمی کے پاس ہونا شرط ہے ملکہ۔ امیر البحر پاشا کا کوئی بیٹا یا ترگت رئیس آ گیا تو وہ بھی انہی کی پیروی کرے گا۔ اتنی محنت ہم نے اس لیے نہیں کی تھی رستم پاشا، تم اس عہدے کے لیے آدمی تلاش کرو اور میں اس کا نام آقا کے سامنے پیش کروں گی۔ جہاں میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ سب کوئی مسئلہ ہے؟ یقیناً میری طرح تم بھی اس محل کے در و دیوار دیکھ دیکھ کر تنگ آ گئے ہوگے۔ ہم سیر و سیاحت کی غرض سے نئی نئی جگہ بھی دیکھنے جا سکتے ہیں۔ تبدیلی مقام کا صحت پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے کہیں جانا ہم دونوں کے لیے بہتر رہے گا، ہے نا؟ خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ یعقوب آقا۔ شہزادے مصطفیٰ نے کہا بغاوت سے، غداری سے تخت پر بیٹھنے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گا میرے آقا۔ سلطان سلیمان کے بیٹے کو کس جرت سے یہ پیشکش کر سکتے ہو تم؟ یہ کہہ کر مجھے تماچا مارا، میں اپنی جان مشکل سے بچا سکا، ورنہ میرا سر قلم کرنے والے تھے۔ اس روز میں نے تمہیں بے حد پریشان دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے نئے گھر کی کنجی۔ وہ کوئی بہت خوبصورت گھر تو نہیں ہے، لیکن تمہارے اور میرے لیے بہتر رہے گا۔ لوگوں کی باتیں سننے سے تو بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں رہو۔ یہ کیا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو تم؟ اس طرح تو میرے ماں باپ نے بھی میرا خیال نہیں رکھا، بچپن سے ہی میں گلیوں میں ٹھوکریں کھاتی آ رہی ہوں۔ یہ بیش قیمت تحفہ ہے میرے لیے۔ تو دوبارہ ایسی بات مت کہنا۔ مجھ سے پہلے بھی کوئی زندگی تھی کیا تمہاری؟ وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور تمہاری مسکراہٹ کے سامنے اس تحفے کی ذرا بھی قیمت نہیں ہے جوہر۔ کیا ضرورت پیش آگے کتھایا جانے کی تمہیں جہانگیر؟ قیادت نے بلایا ہے کیا؟ روانگی کے وقت اس نے ضرور کہا تھا، اور کب سے میں بھی اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ کتھایا سے منیسا بھی چلا جاؤں، شاید کچھ گھوم بھی لوں گا۔ یہاں سے دور رہنا میرے لیے بہتر ہوگا۔ یہ مناسب وقت نہیں، مناسب وقت پہ میں بھی ساتھ چلوں گی تمہارے۔ میں مزید انتظار کرنا نہیں چاہتا۔ آپ تو جانتی ہیں میری صورتحال کی وجہ سے ریاست میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ ایسی حالت میں محل میں قیدی کی طرح رہنے سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس طویل سفر نے مجھے کافی تھکا دیا ہے۔ جاتے ہوئے نہیں جانتا تھا واپس آؤں گا بھی یا نہیں، لیکن اب آپ یہی ہیں۔ یہ خوب ہوا کہ آپ کے وقار پر کوئی آنچ نہیں آئی۔
जरूरत है आपको। आप इतनी खुश लग रही हैं, जरूर कोई अच्छी खबर है। नूर बानो का इंतखाब करके मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। 1-2 महीनों में ही सलीम को राह रास्त पर ले आई और अब माशाल्लाह वो उम्मीद से भी है। आखिरकार मेरे पिसर के हाँ भी तिफल होगा। मुबारक हो मलिका। शुक्रिया। कितने बरसों के बाद मेरी ये दिली आरज़ू पूरी हुई है। फारिहा, जल्दी से ऐलान करवा दो। मेरे पिसर से नस्ल जारी रहेगी, सब जान लेगी बात। आपका जो हुक्म मलिका। शहजादी, मैं तो आपसे बात करने के लिए इद्दत खत्म होने का इंतजार कर रही थी। मुझसे दूर रहने के बहाने क्यों बनाती हो हुरम? मैं यहां हूं तो बात तो करनी पड़ेगी। हमारा करीबी रिश्ता है, मोहब्बत के होते हुए जंग किस लिए? इत्मीनान रखिए, मैं आपके राज इफ्शा नहीं करूंगी। मुझ पर एहसान जताने की कोशिश मत करो। पाशा मरहूम हो चुके हैं। अब वो साबित करना मुमकिन नहीं है। और हाँ, जहांगीर को देखा था कुछ देर कबल। कुथाया जाने के लिए आका से इजाजत मांगी है। जानती हूं मैं। आका ने मुनासिब समझा है। 1-2 रोज में हूर जहां के साथ जाएगा इंशाल्लाह। हूर जहां भी जाएगी। मेरा भतीजा उसके साथ जाना चाहता है। क्या हर्ज है? उसकी हमसफर बन जाएगी वो। जहांगीर। बेआज़त। खुशामदीद ब्रदर। बहुत शुक्रिया। तुम महल में नहीं होगे ये सोच रहा था, लेकिन तुम यहीं हो। शिकार पर जाने का ख्याल था, लेकिन मंसूख कर दिया मैंने। चलो अंदर चलो। ठहरो बेआज़त, एक मेहमान और भी आया है। शहजादे, मैं आपको दोबारा देखकर बहुत खुश हूँ। आगा, कालफाओं को खबर दो, हूर जहां सुल्तान के लिए कमरा तैयार करवाएं। चलो आओ। तुम्हें बहुत याद किया। मुस्तफा। वालिदा, तुम्हें कुछ हो ना जाए ये सोचकर इतनी परेशान थे, बता नहीं सकती। मेरा रब तुम्हें सही सलामत वापस ले आए। हर रोज यही दुआ मांगती थी, मन्नत भी मानी थी मैंने। आपकी सब दुआएं कबूल हो गई वालिदा। जो तुमने किया, मुझे यकीन है आका उससे खुश नहीं हुए होंगे। हुरम नामी उस कम नस्ल ने मौके से फायदा उठाकर कितना जहर भरा होगा तुम्हारे बाबा के कानों में। वो तो मैं नहीं जानता, मगर आका ने मुझे मेरे किए का जवाब दे दिया। उनका फैसला था मुझ पर बात ना आए, लेकिन गुजरने वाला हर लम्हा इंसान को एक नई चीज सिखाता है। झेलने वाली हर अजियत इंसान को मजीद ताकतवर बना देती है।
एक बार फिर समझ गया हूं ये। मेरे मकतूब का जवाब नहीं दिया तो मैं समझी कि मुझे भूल गए हैं आप। कैसा मकतूब? मुझे कोई मकतूब नहीं मिला, बल्कि मैंने भी एक मकतूब भेजा था तुम्हें। जैसे समझ गया कि वो काफी लापरवाह वाक़े हुए हैं। आप इत्मीनान रखें मेरे आका, सब शहजादों में कोई न कोई जौहर काबिल मौजूद है। बाज़ औकात अगर आपको रंज पहुंचाने वाली खता हो भी जाए तो कोई बुरी नीयत नहीं होगी उनकी। ऐसा ही है, लेकिन मैं अब उनकी निगरानी करूंगा ताकि ऐसा हादसा दोबारा कभी रूनुमा ना हो सके। अपने तजस्सुस के लिए माजरत मेरे आका, आप मुझसे क्या चाहते हैं? चाहता हूं शहजादों की रियासतों में जाओ तुम, अपनी शनाख्त खुफिया रखते हुए छुपकर उनके मुतालिक तफ्तीश करोगे तुम। खास तौर पर अवाम की राय मालूम करना कि सब शहजादों से खुश हैं क्या, परेशानी वाली कोई सूरत हाल तो नहीं है। लाला साहिबान की क्या सूरत हाल है, शहजादों को किन की अमानत में सौंपा है, जानना चाहता हूं। आपका जो हुक्म मेरे आका, मैं फौरन सफर पर रवाना हो जाता हूं। इस काम के लिए तुम्हारे लिए 1 लाख अशरफियां मुख्तस कर दी गई हैं। नस्सू, तुमसे सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, बेरहमी बरतना। सच क्या है झूठ क्या है सब बताओगे, तुम मेरे लिए चश्मो गोश बनोगे। इस सब का क्या मतलब है लाला? ना ही मुझे भेजे जाने वाले मकतूब मुझे मिल रहे हैं और ना ही मेरी जानिब से भेजे गए मकतूब कहीं पहुंच रहे हैं। शहजादे, आपसे दरोग नहीं कहूंगा, उस कोताही का जिम्मेदार मैं हूं। मकतूब भेजने में मैं रुकावट बन गया। ये कैसी जुर्रत है? कैसे कैसे कर सकते हैं आप ये सब? सिर्फ आपकी भलाई के लिए शहजादे, ऐसा कोई भी तरीका मुनासिब नहीं समझा जाता। हूर जहां सुल्तान मरहूम इब्राहिम पाशा की साहबजादी है। हुरम सुल्तान को अगर ये मालूम होता तो कहर आलूद हो जाती, और अगर इस बारे में आका ने भी सुन लिया तो नतीजा संगीन होगा। कुछ भी हो जाता लाला, आइंदा कभी आपने ये कोताही की तो कयामत क्या होती है आप खुद मुलाहिजा करेंगे। मलिका, मलिका, क्या है? नाज़नीन खातून मां बनने वाली हैं। फारिया, मेरी पोशाक लेकर आओ। जिस तिफल को मैंने छुपा कर रखा था उसे ले आई महल में। सुंबुल आगा उसे लेने के लिए मरमर महल गए हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। और फातिमा सुल्तान का? फातिमा सुल्तान ने खातून को अपने कमरे में बंद कर लिया है। मालूम था मुझे, इस मसले में दखल देगी, मैं जानती थी इस बात को। कि बेटी की वजह से हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई। खुदा का शुक्र है कि सही सलामत आ गए शहजादे। मुस्तफा उस हादसे के बाद मेहरुन्निसा के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक रखने का मुतामिल नहीं हो सकता। आप दुरुस्त कहती हैं। सब जाहिर होने के बाद शहजादे ने अपने ज़हन से मुकम्मल तौर पर खातून को निकाल दिया है। हम सब पर खुदा ने रहम किया। बिल्कुल। हुरम के साथ जो कुछ हुआ क्या वो सुना तुमने? बरसों के बाद एक दूसरी औरत उसके मुकाबले आ खड़ी हुई। इंशाअल्लाह शहजादा पैदा करेगी वो। वहां जाकर हुरम का चेहरा देखना चाहती हूं मैं। आओ। शहजादी,
आखिर आ गई तुम। जरूर एक रास्ता सुझाई देगा, आपने कहा था। मैं उस पर चलती हुई आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे पास हो। क्या वाकई? मैं एक मसले के बारे में जानना चाहता हूं। खिजर खैरुद्दीन पाशा ने मेरे मकतूब का जवाब दिया है क्या? कहीं तुम उनकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं आई? अमीरुल बहर पाशा, मेरा ख्याल है कि आप मेरे हर मामले से बखूबी आगाह हैं। इस सूरत हाल के बारे में मजीद मालूमात देने की जरूरत नहीं है। महरुम निसा खातून मेरे लिए बेहद बेशकीमत है, सिर्फ आपकी दुख्तर होने की हैसियत से ही नहीं, बल्कि बरसों के बाद मुझे जिंदगी की जानिब दोबारा लाने के सबब भी। कवानीन को मैं जानता हूं, लेकिन एक ऐसा लम्हा भी आ जाता है कि इंसान का दिल किसी भी उसूल और कानून को कबूल नहीं करता। किस्सा मुख्तसर यह है पाशा, आपकी दुख्तर महरुम निसा को अल्लाह के हुक्म से पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक अपने लिए मांगना चाहता हूं। तमाम खदशात और खतरात मोल लेकर मैं सबके सामने सीना तान कर मुकाबला करने का फैसला कर चुका हूं। यह आपके इल्म में लाना चाहता हूं। अब तक नहीं समझे क्या? बाबा ने आपके लिए जवाब भेजा है और वो आपके सामने मौजूद है। मैं यहाँ पर बाबा की रजा से आई हूँ। इसके बाद क्या होगा क्या तुम जानती हो? अल्लाह के हुक्म से अब हमारा निकाह होगा, लेकिन यह हमारे सिवा किसी को बिल्कुल मालूम नहीं होगा। तुम, मैं, वालिद और तशी अली के अलावा किसी को भी मालूम ना होने पाए। तुम्हें हर कोई मेरी मुसाहिब खास ही समझेगा। क्या तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल तैयार हूं। अब तुम अपने कमरे में जाओ महरुन निसा, और मेरे हुक्म का इंतजार करो। हम बहुत जल्द एक हो जाएंगे।
आका, कहिए। नाज़नीन खातून का वक्त शुरू हो गया है। फातिमा सुल्तान ने आपको मालूमात देने के लिए भेजा है। मलिका पुरसुकून रहिए, खुद पे काबू रखिए खुदारा। क्या करूं बताओ मुझे? अगर शहजादा हो गया तो क्या होगा? मुस्तफा के साए से भी खौफजदा रहती हूं मैं, और अगर अब दूसरा शहजादा हो गया तो क्या करूंगी मैं? ये कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। जरूरत पड़ी तो उसे फातिमा सुल्तान के कमरे से निकाल लाऊंगी मैं। तुम्हें अपने कदमों पर अपने पास खड़ा देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तुम ठीक हो गए हो अमीरुल बहर पाशा? खुदा का शुक्र है, अब तबीयत बहुत बेहतर है। कुछ देर कबल यहां आते हुए आपके यहां विलादत का सुना। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। आमीन। यहां आओ। आका, आपसे गुफ्तगू की फुर्सत मैसर ना आ सकी। एक तरफ मेरी सेहत, दूसरी तरफ मुख्तलिफ हादसात। लेकिन आप देख रहे हैं मैं सलामत हूं, आपके सामने हूं। मगर मैं आपसे अपनी सुबुकदोशी की गुजारिश एक मर्तबा फिर पेश करना चाहता हूं। तुम्हारी मुझसे और सल्तनत आलिया से जबरदस्त वफादारी को सारी दुनिया जानती है, और अगर कोई नहीं भी जानता लेकिन मैं जानता हूं अमीरुल बहर पाशा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक अमीरुल बहर नहीं बल्कि उसके साथ मेरे दोस्त भी हो। हम दोनों एक राह के मुसाफिर हैं। आप जैसे एक अजीम उल मर्तबत बादशाह ने मुझे अपना दोस्त समझा। अब मर भी जाऊं तो गम नहीं। वक्त इंसान की जवानी लेकर चला भी जाए मगर इंसान का दिल उसकी रूह कभी नहीं छीन सकता। खैरुद्दीन, वक्त के साथ उसकी अक्ल बहुत पुख्ता हो जाती है। इस वजह से मैं तुम्हारी सुबुकदोशी की गुजारिश कबूल नहीं कर रहा। जब तक तुम्हारी सांस जारी है तुम बहरी बेड़े की सरबराही करते रहोगे। बाअदब मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। मलिका, अल्लाह तुम्हें खुश रखे खातून।
शहजादे की माँ तो ना बन सकी तुम, लेकिन चांद से चेहरे वाली शहजादी की माँ बन गई। माशाल्लाह। नाम क्या रखा है अफीफा खातून? रजिया है मलिका। रजिया। अल्लाह नजर बद से बचाए रखे। आपके बारे में बास खबरें सुनता रहा हूं मैं। आपका एक पांव कब्र में और दूसरा जमीन पर है। मंजिल तो सबकी खबर ही है पाशा, लेकिन मेरी मंजिल अभी दूर है और शुक्र है कि मैं सेहतमंद हूं। आका ने मेरी बेहतर सेहत देखते हुए मुझे मनसब पर बरकरार रखा है, लेकिन अब हमें भी एक समझौता करना होगा। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, हिसाब भी मुझसे ही लोगे। अगर तुमने मेरे अहले खाना पर मैली नजर डाली तो मैं रब्बुल इज्जत की कसम खाता हूं कि तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। तो फिर आप अपने अहले खानों को सियासत से दूर रखेंगे ताकि उन्हें कोई जरर न पहुंच सके। याद रखें, आका से छुपकर साजिश करने की सजा भयानक होती है। आका भी एक दिन समझ लेंगे कि साजिश आखिर कर कौन रहा है। खुदा, कोई हमें देख लेगा। हुरजा, पुरसुकून रहो, ये मेरा महल है, कौन देखेगा हमें? खामोश रहो। कहो, किस लिए आई हो यहाँ? आपका लिबास लेकर आई हूँ शहजादी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ, तुम जा सकती हो। अगर पकड़े जाते तो? डर से तुम्हारे रुखसार सुर्ख हो रहे हैं। खूबसूरत लग रही हो, लेकिन और भी हसीन हो जाती हो जब तुम्हारी ये जुल्फें तुम्हारे चेहरे पर आ जाती हैं। लिहाजा तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए, हमें कोई देख ना ले इस तरह। तुम नाश्ता मेरे कमरे में करोगी, जहांगीर को भी बुलवा लूंगा। ठहर जाओ। रास्ता साफ है, अब जा सकते हो। आओ। शहजादे, नाश्ते पर आपका इंतजार कर रहे हैं। उनसे कह दो मैं ठीक नहीं हूँ, आराम कर रहा हूँ, वो इंतजार न करें। आपका जो हुक्म। खिजर रईस पाशा के बारे में कोई खबर है तुमने कहलवाया है सुंबुल से? वो सेहतयाब हो गया और आका ने भी उसे बहरी बेड़े पर अपनी जिम्मेदारी निभाने का हुक्म दे दिया है। शहजादे से जाकर खुफिया मुलाकातें कर रहा है वो।
उसे तख्त पर बिठाने के लिए साजिश पर साजिश कर रहा है और हम उसे उसकी जगह से हटा नहीं पा रहे। आका का जहन क्या सोचता है ये मालूम करना मुश्किल है, लेकिन अमीरुल बहर पाशा को शहजादे मुस्तफा के साथ पेश आने वाले हादसे के सबब गहरा जख्म लगा है और हम उस जख्म को हरगिज़ भरने नहीं देंगे। क्या करेंगे फिर? मेरा ख्याल है अमीरुल बहर पाशा का आखिरी वक्त आ गया है। मुनासिब वक्त देखकर उनको उनकी शानदार हैसियत के मुताबिक रुखसत कर दिया जाएगा। तो को डाल दूंगा। वालिदा, आपने मुझे याद किया क्या? तुमने कहा था तुम जंग कर रहे हो, इश्क के लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास, याद है तुम्हें? लेकिन मेहरुन्निसा यहाँ आ चुकी है, अपने बाबा को तुम अपने खिलाफ कर लोगे, क्या तुम्हें एहसास नहीं है? वो मेरी मुसाहिब बनकर रहेगी, आका समेत हर किसी को यही बात मालूम होगी। मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि उसे मैं यहाँ देखना नहीं चाहती हूँ। आपने सिर्फ एक मशवरा दिया था, फैसला मुझ पर छोड़ दिया था और मैंने कर लिया है फैसला। मुस्तफा, इतने बरसों तक कायदे और कवानीन की पासदारी से क्या हुआ वालिदा? हमें क्या हासिल हुआ? आका की जन्नत से मैं कितनी मर्तबा धुतकारा गया। इस मर्तबा किसी की नहीं, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनूंगा। इंशाअल्लाह आप भी समझ जाएंगी। मैं समझा था आप दोबारा नहीं आएंगी। फिक्र न करो, किसी को भी मेरे यहाँ होने का मालूम नहीं अब्दुल्ला। आज नहीं तो कल मालूम हो जाएगा। अभी कल ही क्या पेश आया था भूल गई? मैं अपनी किस्मत पर राजी थी, लेकिन शहजादे राजी नहीं हुए। मेरे बाबा को एक मकतूब तहरीर किया, अल्लाह के हुक्म और पैगंबर की सुन्नत के मुताबिक मेरा रिश्ता मांगा। अनकरीब हमारा निकाह हो जाएगा। किस निकाह की बात कर रही हैं? शहजादे पर निकाह करने पर पाबंदी है और आपसे तो मुमकिन ही नहीं। हाँ बिल्कुल, मगर ये खुफिया निकाह होगा अब्दुल्ला। हर कोई मुझे फिर से शहजादे की मुसाहिब के तौर पर जानेगा। आप कैसी बात कर रही हैं? अब्दुल्ला, तुम सिर्फ अपना फर्ज निभाओ, दीगर मामला में दखल न दो। मेरा अव्वलीन फर्ज शहजादे की हिफाजत करना है, दुश्मनों से, दोस्तों से, और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें आपसे भी बचाऊंगा मैं। क्या रुकावट डालोगे? तुम्हें जो करना हो कर लेना, क्योंकि मैं अब यहीं रहूंगी और अब शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आका को मेरी आमद की खबर दे दो। क्या हुआ जानफिदा? यहाँ किस लिए आई हो तुम मुझे? शहजादा सलीम मोहतरम ने तुम्हारे लिए ये कमरा तैयार करवाने का हुक्म दिया है। सच है ये कमरा अब तुम्हारा है। ये कसम से तुम लाजवाब हो खातून। एक जमाने में यहाँ माह दौरा सुल्तान रहा करती थी, जब भी चाहो यहाँ मुंतकिल हो सकती हो। यहाँ हम अकेले रहेंगे, ना दिलशा होगी ना कोई और खातून होगी। नहीं, तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें भी होंगी। बहुत खूब, तो फिर सब काम शुरू कर दें। वेनेदी के महल की तरह सजेगा मेरा कमरा। यहाँ एक बड़ी सी मेज रखी होगी जिस पर श्रमादान होगा, और मेरे बिस्तर पर रेशमी चादर बिछी होगी। ये कालीन यहाँ से ले जाओ, उसकी जरूरत नहीं, और यहाँ हम्माम बनवाओ। तुम जो कुछ कह रही हो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो फर्ज कर लेते हैं तुमने शहजादे को राजी कर भी लिया, लेकिन हरम में सब तुम्हारी बातें करेंगे और तुम्हारे मुतालिक अफवाहें पाए तख्त तक पहुंच जाएंगी। पहुंचने दो, क्या होगा? नाम तो नूर बानो है, लेकिन तुम्हारा वजूद अभी तक सिसिलिया का है।
अगर शहजादी बनना चाहती हो तो तुम्हें बेनेडिक्ट को भूलना होगा खातून। एक तुर्क शहजादी जैसे रहती है वैसे ही तुम्हें भी रहना होगा। दूसरी सूरत में तुम्हें कोई भी कबूल नहीं करेगा। मेरे आका, आपके हुक्म के मुताबिक शहजादों की रियासतों से होकर आ रहा हूं मेरे आका। मेरे पिसरान कैसे हैं? खुदा का शुक्र है, सब सही सलामत अपनी फर्ज की अदायगी में मसरूफ हैं। आपके पास आने की वजह से सफर की तफसीलात तहरीर करने का वक्त मुयस्सर ना आ सका मुझे। बाद में तहरीर कर लेना। तुमने जो भी देखा, जो भी सुना, एक एक बात बताओ मुझे। सबसे पहले मुस्तफा के मुतालिक बताओ। अमसिया की सूरत हाल क्या है? अवाम कैसे हैं? मुस्तफा से वो सब खुश हैं क्या? अवाम शहजादे को अमसिया के लिए एक नेमत करार दे रहे हैं आका। अपनी खिदमत से उन्होंने सबके दिलों को फतह कर लिया है। हर कोई कैसे खुश हो सकता है नसू? उसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं है क्या? शिकायत है। किसी भी उम्र का ओहदे का लिहाज किए बगैर आप जैसे अजीम बादशाह के इंसाफ पर अमल करने से बाज ताजरों को उनसे शदीद शिकायत है कि वो उनके मफाद का ख्याल नहीं रखते। और क्या है? और माह दौरा सुल्तान ने कार खैर में खुद को बेहद मसरूफ कर लिया है। एक फलाही इदारा कायम किया है, उसके वसीले से 4 सिम जरूरतमंद लोगों की इमदाद की जाएगी। अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मुझे क्यों नहीं खबर इस फलाही इदारे की? अभी तक वो मुकम्मल तौर पर फाल नहीं हुआ मेरे आका। उसूल के मुताबिक यकीनन आप तक खबर पहुंचाई जाएगी। मामलात जिस तरह हैं उनमें ज्यादती या कमी करना नुकसानदेह होता है नसू। इंशाअल्लाह अवाम की ये मोहब्बत मेरे पिसर को गुरूर और तकब्बुर की जानिब नहीं लेकर जाएगी। मुस्तफा ने माजी में जो गलतियां की हैं मैं नहीं चाहता वो उन्हें दोहराए। शहजादे के साथ जो कुछ हुआ उससे उन्हें सबक मिल गया है मेरे आका। दुरुस्त भी यही था। अमीरुल बहर पाशाह की दुख्तर मेहरुन्निसा खातून मुस्तफा की मसाहिब बन गई है। क्या अब तक वो अपने मनसब पर काम कर रही है? नहीं मेरे आका, वो आमसिया में नहीं है। शहजादे ने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक खातून को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। आला, दुरुस्त भी यही था। एक शहजादे को किसी के साथ भी रिश्ता कायम रखने में मोहतात रहना होगा। रियाजत कैसा है? कुथाया में सब कुछ ठीक है क्या? सुंबुल हमें न देख ले इस खौफ से बाजार में हंगामा कर दिया था, ये बात मैं अब तक नहीं भूल पाया। कुथाया पसंद आया क्या तुम्हें? जहांगीर, वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ। तुम जब से आए हो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। तुम्हें देखने को तरस रहा हूं। सफर की थकान उतर गई क्या? अभी तक नहीं उतरी, इसलिए आराम कर रहा था। तुम्हें क्या हुआ जहांगीर? अफसरदा लग रहे हो तुम। मैं ठीक नहीं हूँ। कुथाया जिस दिन से आया हूँ मेरा दर्द काफी बढ़ गया है। मुझे क्यों नहीं बताया? फौरन हकीम को बुलवा ले। जरूरत नहीं, इस्तांबुल से दूर नहीं आना चाहिए था। बरसों से मुझे वहां रहने की ऐसी आदत सी पड़ गई है कि यहाँ मेरा दिल ही नहीं लग रहा है। आबो हवा की तब्दीली का असर होगा शायद। हकीम से कहो मुआयना कर ले। आका के खास हकीमों के सिवा मुझ पर किसी की दवा का असर नहीं होगा। तुम भी समझने की कोशिश करो। जल्द तैयारी करके पाया तख्त वापस चलना होगा। ये कैसे हो सकता है ब्रदर? अभी तो आए हो, अभी तो जी भर की मुलाकात भी नहीं की तुमसे। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। रियाजत, मुझे वापस जाना है। तुम जिद मत करो। शहजादे बियाजत महल में बहुत कम रहते हैं, मुस्तकिल अवाम के दरमियान होते हैं। उनकी परेशानियां सुनकर उनका हल ढूंढते हैं। खुद को खतरे में नहीं डाल रहा होगा इंशाअल्लाह। मैंने भी उन्हें इस जमन में मोहतात रहने की नसीहत की थी, लेकिन इस बारे में वो बिल्कुल एहतियात से काम नहीं लेते। जाहिर है वो तो लाला मुस्तफा हर वक्त साई की तरह उनके साथ लगे रहते हैं, उनकी हिफाजत के लिए हर तरह के इकदाम करते हैं। बियाजत का जोश एक तूफान जैसा है मदरकची। ऐसा कि बारिश होते अगर देख ले तो पत्थर फेंकने शुरू कर देगा। जल्द अज जल्द से अपनी इस आदत से निजात पाने की जरूरत है।
वक्त गुजरने के साथ वो समझ जाएंगे और आपके लायक शहजादे होने का सबूत देंगे। इंशाल्लाह। मनीषा से क्या खबर लाए हो? सलीम कैसा है? वो मनीषा पहुंचते ही आवाम की परेशानियां खत्म करने में मसरूफ हो गए मेरे आका। काफी अरसे से पानी का मसला था, उसे हल करके आवाम को मुतमईन कर दिया है। कैसे हल किया? 2 मुख्तलिफ जगहों से नहरें खुदवाकर शहर तक पानी लाने का बंदोबस्त किया। बहुत ज्यादा अखराजात की वजह से दरबार भी इसके खिलाफ था, लेकिन शहजादे ने अखराजात का एक हिस्सा अपने जाती खजाने से खर्च कर डाला। आला। हरम की सूरत हाल क्या है? उनकी मंजूर नजर नूर बानो खातून के उम्मीद से होने का सुना है। मैं जानता हूं, हुरम ने बताया था। बाबा बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। क्या वो खुर्दोनोश में एहतियात कर रहा है? मुझे अफसोस है मेरे आका, शहजादे बाज बुरी आदतों को अब तक तर्क नहीं कर पाए हैं। सुना है महल जाने वाली शराब की कोई हद और हिसाब नहीं है। अगर कुछ और नहीं कहना तो तुम जा सकते हो। मेरे आका, एक खास मसला और है। शहजादे सलीम बाजार में भेस बदल कर गए तो वहां एक हादसा रुनमा हो गया। एक दुकानदार को मार दिया गया। दुकानदार की बीवी ने शहजादे के खिलाफ काजी से शिकायत कर दी, लेकिन मुकदमे की समाअत न हो सकी। मसला क्या था? शहजादे भेस बदले हुए थे, इसलिए गाफिल को मालूम नहीं हो सका। मैं आपसे इस बारे में माफी चाहता हूं। गुस्ताखी माफ फरमाइए। अय्याश और औरतों की खलवत में रहने वाला उसने उन्हें ये ताना दिया था। मुकदमे की समाअत क्यों नहीं हुई? दुकानदार की बीवी ने शिकायत वापस ले ली है, ये बताया गया है। गवाहान को भी खामोश करवा दिया गया है। अवाम के कहने के मुताबिक आका हादसे को दफन कर दिया गया। गजनफर आगा, शहजादे अपने कमरे में है क्या? बिल्कुल है। खैरियत तो है। उनसे मिलना चाहती हूँ। ऐसे अपनी मर्जी से तुम नहीं मिल सकती। कवायद और जवाबी तब तक सीखे नहीं तुमने। मेरा उनसे मिलना जरूरी है। रुको, अभी नहीं, तुम दोबारा आ जाना। रुको, क्यों आई हो तुम? इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो तुम? नूरबानो, क्या हो गया आपको? कल तक तो मुझसे मोहब्बत की बातें कर रहे थे और अब दूसरी औरतों के साथ खुद को बहला रहे हैं। अभी तुम जाओ, मुनासिब वक्त पर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस मुलाकात के बाद आप मेरे पास आएंगे? मत आइएगा, मैं नहीं चाहती हूँ। सुलेमान, सुलेमान, सलीम के कारनामों का इल्म हुआ तुम्हें? खैरियत तो है, क्या हुआ है? बाजार में भेस बदलकर घूमते हुए एक दुकानदार को मौत के घाट उतार दिया। उससे भी बुरा ये किया कि हादसे को मिट्टी में दबा दिया। किसने बताया आपको ये सब? काजी से शिकायत की गई थी, लेकिन अब क्या हिकमत थी कि शिकायत वापस ले ली गई और गवाहान को भी खामोश करा दिया गया। यह हादसा कैसे हुआ ये तो मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बिल्कुल अचानक वो कैसे किसी की जान ले सकता है? सलीम को अय्याश कहा उस गाफिल ने। औरत की खलबत का दिलदा था। अफसोस, एक शहजादे को क्या ऐसा होना चाहिए? कोई भी मेरे पे सर पर इल्जाम नहीं लगा सकता। हुरम, खता की होगी, लेकिन ऐसे घिनौने इल्जामात उस पर आयद नहीं किए जा सकते।
وہ بہت عرصے پہلے شراب نوشی ترک کر چکا ہے. مجھے اس کے حرم کے نظام کی ہر خبر رہتی ہے. عنقریب صاحب اولاد بھی ہونے والا ہے. اس کا سبب جو بھی ہو یہ سب قبول نہیں کیا جا سکتا. میری اولاد انصاف قائم کرنے سے روگردانی کرے گی تو میں اور عوام اس کے احترام کرنے کا خیال دل میں کیسے لائیں گے حرم؟ روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ اس دنیا کا نظام کیسے قائم رکھ پاؤں گا میں؟ شہزادوں سے ہمیشہ خطائیں ہوتی رہتی ہیں سلیمان. ہر کوئی عقل و دانش کے مشورے کا محتاج رہتا ہے ہر دور میں. سلیم پر عائد ذمہ داری بہت بھاری ہے. وہ ناتجربہ کار ہے. مصطفیٰ نے بھی اس عمر میں اپنی ناتجربہ کاری کے سبب کئی خطائیں کی، آپ کو معلوم ہے. ہر خطا کی ایک سزا بھی ہوتی ہے حرم. وہ چاہے میری اولاد ہی کیوں نہ ہو میں اسے اچھا قرار نہیں دے سکتا. اصول سب کے لیے برابر ہے. کوئی میرے انصاف سے رعایت حاصل نہیں کر سکتا. نور بانو خاتون، یہ کہاں پر رکھوں؟ نکل جاؤ یہاں سے. میں کسی کو بھی دیکھنا نہیں چاہتی. تنہا چھوڑ دو مجھے. کیا ہوا؟ تم اتنی برہم کیوں ہو رہی ہو؟ وہ خاتون تم نے بھیجی تھی نا. کون سی خاتون؟ خبردار سے تم نے ان سے جھوٹ کہا تو. میں کس کی بات کر رہی ہوں تم اچھی طرح جانتی ہوں. کیا ہوا اگر بھیج بھی دیا تو؟ آخر میرا فرض بھی یہی ہے. ایسے عظیم شہزادے صرف تمہارے ساتھ تو نہیں رہ سکتے نا. بات سنو، اگر آئندہ کسی خاتون کو بھیجا تو میں قسم کھاتی ہوں تمہیں اس محل سے باہر نکال دوں گی. ساری زندگی ٹھوکرے کھاتے پھرو گی. اپنی کامت سے بڑی باتیں مت کرو نور بانو. تم کون ہو؟ ہاں، خورم سلطان سمجھ ہو خود کو کیا؟ محل سے نکال دو گی مجھے جیسے میں تو اپنی خواہش سے بھیج رہی ہوں نا. حرم کے برسوں پرانے نظام کو میں تبدیل کر دوں؟ ہاں، قواعد و ضوابط یہی ہیں. تمہیں سمجھ نہیں آ رہا نا؟ جل رہی ہوں میں. انہیں کسی اور کے ساتھ بھی کر پاگل ہو رہی ہوں میں. شہزادی کے دل میں صرف تم بسی ہو. وہ تمہارے علاوہ کسی کی بھی طرف نہیں دیکھتے. بہت چاہتے ہیں تمہیں. اور پھر تم امید سے ہو تمہاری اولاد ہوگی. آخر اور کیا چاہتی ہو اللہ سے؟ میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو. کوئی بھی نہیں. یہی چاہتی ہوں میں. تم پاگلوں جیسی باتیں مت کرو نور بانو. تمہارے روبرو عظیم شہزادے، انہیں غصہ مت دلاؤ. تم اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچو، ورنہ یاد رکھو اسے تم سے چھین کر رضائی ماں کے حوالے کر دیں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. یہ اتنا بھی آسان نہیں جانتے تھا. میرا نام نور بانو ہے. میں جو چاہتی ہوں کر گزرتی ہوں. آج نہیں تو کل کر گزروں گی. یہ لو، اسے نور بانو کو بھیج دو. آپ کا جو حکم ملکہ. ملکہ معذرت چاہتا ہوں لیکن آپ کو کچھ پشیمان دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ سلیم کے ساتھ منیسا میں ایک حادثہ رونما ہوا ہے. نور بانو نے مجھے اس مسئلے کے ختم ہونے کا بتایا تھا لیکن وہ آقا کی سماعت تک پہنچ گیا. میں نے خاتون کو محتاط رہنے کا لکھا ہے. اس میں نصیحت کی ہے. سمجھ گیا ملکہ. سنبل، حکم دیجیے ملکہ. آج کے بعد سلیم اور بیاست کی ہر خبر سب سے پہلے مجھے دی جائے گی. ان کی جانب سے آنے والا مکتوب پہلے میرے پاس پہنچنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا کے اتنے محافظوں سے چھپ کر کیسے لا سکتا ہوں؟ لقمان آقا سے کہو، وہ یہ مسئلہ حل کر لے گا. آپ کا جو حکم ملکہ. آقا سے میری ملاقات ہوئی. شہزادے کے متعلق معلومات فراہم کر دی. شہزادے مصطفیٰ کے بارے میں کیا بتایا؟ سب کچھ ٹھیک ہے یہ بتایا ہے، لیکن آقا نے آپ کے دختر کے متعلق پوچھا تھا، یعنی وہ آمسیہ میں ہیں یا نہیں. اور تم نے کیا جواب دیا؟ آقا سے دروگوئی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادے کی بہتری کے لیے اس حقیقت کو چھپانے کی ضرورت تھی. ایسا کرنے سے میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں، لیکن ہم جو چاہے کر رہے نسو افندی، مقدر کو ہرا نہیں سکتے. ایسا ہی ہے پاشا، ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ
शहजादे बयाज़त के लिए चैन से रहना मुश्किल है। मैंने ये भी नहीं बताया, बता ही नहीं सका। अल्लाह हमारी हिफाजत करे। आमीन। हकीम साहब, खिजर खैरुद्दीन पाशा का मुसलसल मुआयना तुम ही कर रहे हो ना? एक दिन छोड़कर उनसे मुलाकात को जाता हूं पाशा। सूरत हाल क्या है? आका इस बारे में जानना चाहते हैं। सुना है कि वो रूबा सेहत हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद रोज में काफी बेहतरी आई है पाशा। अगर मुकम्मल आराम करेंगे और इसके अलावा खाने पीने में मुहताज रहेंगे तो बिल्कुल सेहतियाब हो जाएंगे पाशा। पाशा की सेहत इस अजीम सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मुझे यहाँ आज चंद ही रोज गुजरे हैं। मुझे नहीं जाना भी, तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। जहांगीर से बात करती हूँ मैं, शायद वो अपना फैसला बदल दे। मैं भी तुमसे जुदा होना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जहांगीर तकलीफ में नहीं होता तो वो भी नहीं जाना चाहता। अब तुम बात करोगी तो तुम्हारा दिल रखने के लिए वो मजीद ठहर जाएगा। ठीक कहा। यहाँ आते हुए वो पुरजोश था, उसकी सेहत भी ठीक थी। उसे अचानक क्या हुआ मैं समझ नहीं सकी। वो पहली बार महल से दूर हुआ है। शायद वालिदा और बाबा की दूरी के सबब ऐसा हुआ है। हम बरादरान में सबसे ज्यादा मैं ही चाहता हूं जहांगीर को। वो सबसे ज्यादा पसंद है मुझे, और हम दोनों की किस्मत भी शायद एक जैसी है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं परवान चढ़ते हुए हमेशा ब्रादर के साथ साथ रहा। आका को अपना एहसास दिलाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। और जहांगीर हमेशा छुपना और पीछे रहना चाहता था अपने कुबड़ेपन के बाइस। यानी तुम ये समझ लो कि हूर जहां हम दोनों ही आका के लायक नहीं है, हम ये सोचते रहे, हमेशा पीछे रहे और अपने दीगर बरादरान के साए में जीते रहे। लगता है हम दोनों का दिल बचपन में बहुत ज्यादा दुखाया गया है। शायद इसी वजह से हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं और अब हिज्र को सोचकर दुख महसूस कर रहे हैं। तुमसे दोबारा मिलने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं जरूर ढूंढ लूंगा। आ जाओ। शहजादे, बग्घी तैयार है। जिस वक्त चाहें शहजादे जहांगीर और हूर जहां सुल्तान रवाना हो सकते हैं। आला। हूर जहां, तुम तैयारी करो, मैं जरा जहांगीर को देख लूं। शहजादी, आप समझ रही हैं कि आप फूलों भरे रास्ते पे चल रही हैं, जबकि आपका रास्ता बहुत तारीक है। हर कदम पर कांटे, दलदल और पत्थर हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये बात कहने की जरूरत कैसे हुई आपकी? अभी इब्तिदा में ही वापस लौट जाएं शहजादी। यही आपकी और शहजादे की सलामती के लिए बेहतर होगा। आओ। जहांगीर, तबीयत कैसी है? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक हूं। बग्घी तैयार है। सफर में कुछ भी हो सकता है, हकीम तुम्हारे साथ जाएंगे। पाया तख्त के लिए इतनी जल्दी वापस जाने पर तुम दोनों को दुख हुआ, मैं जानता हूं, लेकिन ऊर्जा चाहे तो यहां रह सकती है। मेरे साथ जाने पर कोई जबरदस्ती नहीं। काश वो रह सकती। मुनासिब होगा तुम्हारे ख्याल में? यानी वो कुताया घूमना चाहती थी, उसे मौका नहीं मिला, ये कह रहा हूं मैं। हमें तन्हा छोड़ दें। मैं सब कुछ जानता हूं ब्रादर।
नूरजहां के साथ तुम्हारे ताल्लुक को जानता हूं। नूरजहां ने बताया है क्या? नहीं, कुछ बताने की जरूरत नहीं किसी को। तुम दोनों को एक साथ देख लेना ही काफी है। तुम इंसानों को देखते हुए दरअसल उनके दिल में झांकते हो। तुम उनकी आंखों में लिखी तहरीर पढ़ सकते हो ना ब्रदर? मुबालिगा आराई मत करो। ये बात किसी को मालूम ना हो जहांगीर, खास तौर पर वालिदा और आका को। नहीं होगी, मुझ पर एतमाद कर सकते हो। मैं चाहता हूं। हकीम से गुफ्तगू हुई आका। खिजर खैरुद्दीन पाशा की सेहत के मुतालिक वो बजाते खुद तवज्जो दे रहे हैं। दिन ब दिन पाशा की सेहत बेहतर होती जा रही है। अमीरुल बहर पाशा बहुत से तूफानों से गुजरे हैं, इससे भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। आप बरहक हैं आका, वो इस अजीम सल्तनत के लिए बहुत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। बेशक। नसुआ फंदी को अनातोलिया की रियासतों का जायजा लेने का फर्ज सौंपा था। वो वापस आते हुए अपने हमरा शहद से भरे हुए मर्तबान लेकर आया है। ये मर्तबान अमीरुल बहर पाशा के लिए अलग क्या है, इसे खाकर वो अपनी कुव्वत को बढ़ाएं, सेहत को बेहतर बनाएं। मैं इसे पहुंचा दूंगा मेरे आका। मेरे आका, तजस्सुस के लिए माजरत, नसुआ फंदी अनातोलिया क्यों गए थे? रियासतों की सूरत हाल क्या है उसकी तफ्तीश करवाना चाहता था। उम्मीद है आपको परेशान करने वाली कोई खबर नहीं लाए होंगे। तुमने क्या कहा जहांगीर से? कुछ नहीं, उसे बहुत पहले से मालूम था। घबराओ नहीं, वो किसी के सामने हमारा राज अफशा नहीं करेगा। मुझे शर्म आ रही है, सामना कैसे करूंगी उसका? वो हमारा हमराज बन गया है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं किससे बात करूंगा? काश के कुछ और दिन तुम यहाँ ठहर जाती। मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मैं तन्हा नहीं ठहर सकती यहाँ। इससे हम दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक कहती हो। तुम्हारा सोचे बगैर मेरे लिए एक पल भी गुजारना मुश्किल है। मेरा भी यही हाल है। जहांगीर, आप सलामत रहे शहजादे। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। आमीन। अपना ख्याल रखना। मैं यूं इज्जत में नहीं जाना चाहता था। तुम्हारा दिल दुखाओ तो माफ कर देना। तुम ये कैसी बात कर रहे हो मेरे ब्रदर? तुम्हारी जान, तुम्हारी सेहत हर चीज से ज्यादा अहम है। वालिदा और मेहरमा को मेरा सलाम कहना, और आका को भी सलाम कहना। हाँ, क्यों नहीं। सलीम के मुतालिक जो बात की थी उसका क्या होगा? अगर बाबा ने सुन लिया तो? किसी को नहीं बताना। आका और वालिदा को दुखों में बिल्कुल नहीं चाहता। दुरुस्त भी यही है। तुम्हारी भी कोताही शामिल है इसमें। मनीषा खुफिया तौर पर जाने का इल्जाम आएगा तुम पर। जहांगीर, मेरे बहादुर ब्रदर, काश कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचता मेरे लिए। ये बात हरगिज मत करो। वालिदा, हमशीरा हर वक्त तुम्हारे साथ हैं, और मैं भी। काश के बियाज़त तुम भी अपने लिए कुछ सोचो।
आ जाओ। आपने मुझे याद किया पाशा मोहतरम। करीब आओ सुकुल्लू। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम पहले खिजर खैरुद्दीन पाशा के हुक्म पर ही जंग में शामिल हुए थे, क्यों ऐसा ही है ना? दुरुस्त है पाशा। प्रीवेज और निश में जंग के दौरान पाशा के बहरी बेड़े में शामिल होने का एजाज नसीब हुआ था। आला, तो फिर तुम पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। मेरे लिए क्या कोई हुक्म है पाशा मोहतरम? आइए शहजादी, आपके लिए मैंने कमरा तैयार करवाया है। हैरान रह गई मैं ये देखकर। ये कालीन, ये पर्दे बहुत शानदार हैं। ये कालीन अजम से लाया गया है। पर्दों का कपड़ा रेशम से बना है और चीन से लाया गया था। दूसरी चीजें भी बहुत मुश्किल से दस्तयाब हो सकी। बहुत खूब। अब आप आराम कीजिए शहजादी, शाम को खाने पर मिलते हैं। मेरी खातिर ऐसा कमरा तैयार करवाया है तो शहजादी का अपना कमरा कैसा होगा? बहुत बाज़ौक है हमारी शहजादी। उन्होंने जो नया कमरा बनवाया है वो बहुत खूबसूरत है। तन्हा रहने की वजह से उसे नफासत से बनवाया है। कैसी तन्हाई? पाशा के साथ नहीं रहती क्या शहजादी? पाशा की हर्जी गमीना से वापस आने के बाद से वो अलग कमरे में रहती है। पाशा के खर्राटे शहजादी की नींद खराब कर देते हैं। सुना तुमने मलिक? रुस्तम के खराटे मेहरमा को बेआराम करते हैं। इस उम्र में अपने शौहर के साथ खुश रहने वाली खातून को खराटे तो क्या, तोप की आवाज भी नहीं जगा सकती। पाशा मोहतरम, महल के दरबान मेहमत आगा आए, आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। पाशा मोहतरम। सुकुल्लू मेहमत आगा, तुम्हें यहाँ का रास्ता याद था? रास्ता याद था मगर महल के काम खत्म ही नहीं होते, इसीलिए कभी आपके पास आना नसीब नहीं हो सका। अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए पाशा। आमीन आमीन। क्या है ये? आगा ने अपने शहद में से कुछ हिस्सा आपके लिए भेजने का हुक्म फरमाया था। बहुत शिफा वाला है, हर रोज एक चम्मच खाने से फायदा होगा। आका सलामत रहे, उनकी इनायत है। मेरा सलाम और शुक्रिया उन तक पहुंचा देना। खाना बेहद लजीज है मेहरमा। बहुत शुक्रिया शहजादी। और ये जगह भी निहायत शाहाना है। अल्लाह करे हमेशा यूं ही खुश खुर्रम जिंदगी गुजारो। आमीन। आपकी महल में तशरीफ आवरी हमारे लिए एजाज है शहजादी। बहुत खूब किया कि आप आ गई। महल में अब कोई लुत्फ नहीं, मेहरमा से यहाँ गुफ्तगू हो जाती है कम से कम। खुशकिस्मत हो तुम। इस जैसी शहजादी हर किसी को नसीब नहीं होती, इसकी कदर करना। शहजादी मेरा सबसे बेशकीमत खजाना है। ये मेरी शबे स्याह का अंजुम, मेरे दिन की रोशनी है। निहायत खूबसूरत फूल है। ये मेरा मुकद्दर है, मेरी सांसें और मेरी जिंदगी है। वाह क्या बात है। यह हर्ष गवीना की जुदाई का नतीजा तो नहीं? बाज़ औक़ात जुदाई फायदेमंद भी होती है। हर्ष गवीना से मुझे याद आया, वहां रहते हुए मालकोचू बाली साहब से भी तो मुलाकात हुई होगी तुम्हारी? नहीं, उसे नहीं देखा। सुना है उसकी शादी हो गई।
ब्यूटीफुल भी हो गए होंगे अब तक। वजीह मर्द है, एक जंगजू बहादुर। ऐसा मर्द हर खातून को नसीब नहीं होता। अगर आप चाहें तो मीठा तनावुल कर लें। मैंने आपके लिए खीर बनवाई है शहजादी। मीठा मुनासिब नहीं मेरे लिए। मैं क्या कह रही थी, हाँ, बाली साहब, मैंने सुना है कि वो अपने पीछे दर्द भरी मोहब्बत की दास्तान छोड़कर गया है। पाए तख्त से जाते ही उसने शादी कर ली, तो इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने सुना है वो बिल्कुल सच है। अल्लाह जाने कितनों का दिल जलाया होगा। इरादा बदल दिया। चलो मीठा तनावुल कर लेती हूँ। मुझे खीर काफी पसंद है। पाशा मोहतरम, क्या आका का इनायत करदा शहद है ये? जी हाँ, ये खालिस जंगली शहद है। जायका जरा तुर्श है, लेकिन हर मर्ज का इलाज मौजूद है इसमें। पाशा मोहतरम, इजाजत हो तो। क्या कर रहे हो तुम? ये आका की जानिब से भेजा गया है ये। क्या मालूम पाशा, हो सकता है आका को खबर भी ना हो। ए अल्लाह, कैसे दिन आ गए हैं। हर चीज पर शक होने लगा है। तुम उसकी निगरानी कर रही हो ना? ख्याल रखना कहीं वो साथ न रहना शुरू कर दें। वो साथ नहीं रह रहे मलिका। मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर मुहाफिज खड़े करवा दिए हैं। वो इतनी दूर से सिर्फ गुफ्तगू करने के लिए तो नहीं आई है ना? जरूर कोई और मामलात भी होंगे। या अल्लाह, तो मुझे सब्र अता फरमाना। किसी ने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी, बहुत रुसवाई होगी। आओ। मलिका, शब को इस वक्त मुखल हो रही हूँ। कैसा मुखल होना? आओ बैठो मेरे पास। मसला है कोई? मुझे एहसास है और इस बात पर रंज भी है कि मेरी यहाँ आमद से आप कितनी परेशान हैं। यकीन कीजिए, मैं आपको रंज पहुंचाना नहीं चाहती। मेरे रंज का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अमीरुल बहर पाशा की दुख्तर मेरी भी दुख्तर है। लेकिन तुम खुद देख चुकी हो क्या कुछ नहीं हुआ। हमारे दुश्मन बहुत संगदिल हैं। मलिका, मेरा शहजादे के साथ वफादारी का रिश्ता है। यकीन कीजिए, मैं हरगिज नहीं चाहती उन्हें कोई जरूर पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं वजाहत करना चाहती हूँ। तुम क्या वजाहत करोगी मेहरुनिसा? हमें तन्हा छोड़ दो। आका हर रोज गोद में लेते हैं अपनी दुख्तर को। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा हुआ एक हमशीरा और हो गई। तुम उदास मत होना। आका की नजरों में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उदास नहीं, बल्कि शहजादी को मैंने अब तक देखा भी नहीं। कम से कम बड़ी होने तक मेरे साथ रहेगी। मुझे इजाजत दें शहजादी, मेरे मुताले के लिए बहुत जरूरी कागजात मौजूद हैं। क्या हो गया? अचानक उठकर चले गए? उमूर सल्तनत की कोई मसरूफियत होगी। तुमसे बढ़कर सल्तनत क्या होगी मेहरमा? सुना है तुम दोनों के कमरे भी अलग हैं। क्या इस तरह भी जिंदगी गुजारी जाती है? मैं समझी नहीं शहजादी। अपना हाल तो देखो जरा। एक गुले ताजा मेरे सामने मुरझा रहा है। गुल के पास एक बुलबुल होना चाहिए था, लेकिन कैसा बुलबुल? कौवा बैठा है। शहजादी, आप बिला सबब खुद को हल्कान न करें। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। कमरे फिर क्यों अलग कर लिए? तुम्हारी उम्र में ऐसा नहीं होता मेहरमा। ये उम्र तो हंसने खेलने की है, अरमानों को पूरा करने की है। ऐ खुदा, मैं ये क्या सुन रही हूँ?
खुफिया निकाह करोगे तुम दोनों? शहजादे के साथ मेरी वाबस्तगी बहुत गहरी है मलिका। मेरी मोहब्बत दुर्खुलूस है। मैं एहतराम करती हूँ मोहब्बत का, लेकिन ये सब नहीं हो सकता मेहरुनिसा। इसके बाद क्या जिंदगी भी खुफिया गुजारोगे? तुम दोनों इस तरह कैसे खुश रह सकोगे? जिस जिंदगी की ख्वाहिश हो वैसी ना गुजरे तो क्या फायदा? मैं शहजादी की सिर्फ ज़ौजा ही नहीं, उनकी मददगार भी बनूंगी मलिका। इसका क्या मतलब हुआ? आपको हर चीज का इल्म नहीं, मुझे बताने से मना किया गया था, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहती हूँ। माजरत चाहता हूँ शहजादे, लेकिन मेरा फर्ज था इसलिए नसीहत करने पर मजबूर हूँ। मैं तुम्हें समझता हूँ अब्दुल्ला। मेहरुन्निसा भी यहीं रहेगी, वापसी का इम्कान नहीं। तुम यकीन करना अब्दुल्ला, यही सब मैं भी दोहरा चुका हूँ, लेकिन शहजादे मोहतरम के तमाम फैसलों के आगे हमारी कोई हैसियत नहीं। किस बात से खौफजदा हो तुम आखिर? शहजादे अली आगा का सर कलम कर दिया गया और आका ने हुक्म की तामील आपसे करवाई, आप बखूबी जानते हैं। ये आपके लिए, बहरी सिपा के लिए और यनीचरों के लिए एक इंतहाई सख्त जवाब था। उसके बाद आपका उठाया हुआ हर कदम, खास तौर पर अमीरुल बहर पाशा की दुख्तर से निकाह करना, आपको जंग की तरफ धकेल देगा। ये जंग आप दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि आका के मुकाबिल उनके खिलाफ करेंगे। मैं नहीं समझता आप ऐसा चाहेंगे। यूं भी हमारा दुश्मन कई बरसों से आका को मेरे मुकाबिल लाना चाहता था, लेकिन कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि बाबा को मैं जानता हूं और बाबा मुझे। हम दोनों की सिर्फ एक ही कमजोरी है, हमारा जमीर। शहजादे, जहां जमीर होता है वहीं जमीर का अजाब भी होता है। तुम्हारा मशवरा क्या है? मेहरुन्निसा को भेज दूं क्या? तुम किसकी तरफ हो अब्दुल्ला? किसके लिए काम कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक बुज़दिल शहजादा बन जाऊं? शहजादे, मैं तुम्हें समझ रहा हूं अब्दुल्ला, तुम सबको समझ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मुझे समझो। अगर मेरे साथ चलना चाहते हो तो मेरे फैसलों पर हरगिज़ बहस मत करो। मैं जो कोई भी रास्ता इख्तियार करूंगा तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तशी अली, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूं शहजादे। दाऊद, मेरी जान आप पर हमेशा के लिए फिदा हो। हर हुक्म और फरमान मेरे शहजादे का है। मालकोचू वाली साहब के मुतालिक आओ। तखलिया। आप आ गए, अच्छा हुआ। मैं आपको बुलवाने वाली थी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी। आका का हुक्म मिला है, बाजार में पेश आने वाले हादसे का मुकदमा दोबारा समाअत के लिए पेश होगा। इसके अलावा इस हादसे की मालूमात ना देने की वजह से लाला साहब को बरतरफ कर दिया गया है। नाखुशगवार हादसे मुस्तकिल हो रहे हैं शहजादे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुद को पुरसुकून रखना बेहतर है। कैसे पुरसुकून रह सकता हूँ गजनफर? इस मसले से मेरा वकार मलिया में ठोका, तुम्हें ये एहसास नहीं है क्या? लोग बातें बनाएंगे शहजादे, लेकिन उन्हें खामोश करवाना जानते हैं। पहले भी ये सब खामोश कराने की वजह से हुआ है। ये फितना बेअज़्ज़त ने खड़ा किया है, ये आश्कार है। उसने मेरी शिकायत की होगी आका से। खता हो गई गजनफर, बेअज़्ज़त पर भरोसा करके खता की हमने। ये नहीं चाहिए, और वो भी नहीं। ये कैसा है शहजादी? मना कर दिया ना तुम्हें? शहजादी, महरमा, महल वापस जा रही हूँ।
इतने रोज से तुम्हारी मेहमान हूँ, अब जाना चाहिए। और मेहमान को वैसे भी कम ही ठहरना चाहिए। और वैसे भी मेरे ज्यादा रुकने से रुस्तम परेशान होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। कितनी खूबसूरत है ये मलबूसात। आपको पसंद आ गई ये सब? एक जमाने में मुझे भी ये लिबास बहुत पसंद थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने लिए कुछ नए मलबूसात और जेवरात बनवाना चाहती हूँ। ये सुनकर खुशी हुई। खूबसूरत है कि किसी एक को मुंतखब करना मुश्किल है। मैं तो कहती हूँ एक खातून के लिए मलबूसात और जवाहिरात उतने ही नागुज़ीर होते हैं जितना कि इश्क। ठीक कहा ना मेहरमा? जानसदा, शहजादी के अपने कमरे में है। उन्हीं के बारे में बताने आई थी। क्या बात है? शहजादे का मिजाज एक बार फिर काबू से बाहर हो गया है। बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उनकी किसी से मुलाकात मुमकिन नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है? बाजार में पेश आने वाले उसी पुराने हादसे के हवाले से। उसकी वजह से क्यों? वो मसला तो खत्म हो चुका था। कसम से मुझे तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन शहजादे ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। मत जाओ तुम उनके पास, वरना उनका अज़ाब तुम पर गिरेगा। शहजादे जहांगीर तशरीफ ला रहे हैं। जहांगीर, तुम्हारी जल्द वापसी की तवक्को नहीं थी। अच्छा किया जो लौट आए। फिक्र थी मुझे तुम्हारी। बेआज़त कैसा है? आफियत से होगा? वो ठीक है वालिदा, रियासत के मामलात में काफी मसरूफ है। तुम इतने उदास क्यों हो? और ये तुम्हारा चेहरा क्यों इतना मुरझाया हुआ है? क्या भाई से झगड़ा हुआ है? बेटा क्या हुआ है, बताओ मुझे। कुथाया के सफर के दौरान मुझे काफी तकलीफ शुरू हो गई थी वालिदा, उस वजह से वापस आ गया। मुझे लगता है कोई और बात है। और क्या बात हो सकती है? जिंदगी पिंजरे में गुजारने वाले परिंदे को आजाद करने तो वो नहीं रह सकता अपने पिंजरे के बगैर वालिदा। मुझे भी महल की याद आई और आपकी भी, इसी वजह से मैं वापस आ गया। इसके अलावा और कोई वजह नहीं। जहां शहजादी, सब खैर तो है हुरजहां? बेआज़त ने तुम्हें कहीं जवाब तो नहीं दे दिया? जी नहीं, आपने सच कहा था शहजादी, मैं उनके दिल में बसी हूँ। तो तुम उदास क्यों दिखाई दे रही हो फिर? जहांगीर वापस आना चाहता था। कौन जाने अब कब मुलाकात होगी दोबारा, कितने महीनों और कितने सालों बाद। उदास होने की जरूरत नहीं। इश्क के दोष पर उड़ने वाले परिंदों को कोई रोक नहीं सकता।
एक दिन मुलाकात जरूर होगी। आ जाओ। शहजादे, दरबार आपकी तशरीफ आवरी का मुंतजिर है। आला। आपके हाथ में जो मकतूब है, मेरा कयास है उन्हीं के लिए है। आप क्यों बेसबब दखल दे रहे हैं लाला? मैं सबक सीख चुका हूं, मकतूब आपको हरगिज नहीं दूंगा। मैंने जो भी किया है आपकी हिफाजत के पेश नजर किया है शहजादे। आप खुश न भी हूं तब भी आपकी रहनुमाई करना मेरा फर्ज है। क्या आपका फर्ज सिर्फ बरादरान में से किसी एक के तख्त पर बैठने का इंतजार करना तो नहीं? वक्त आगे चलकर क्या दिखाएगा हमें मालूम नहीं शहजादे। मेरे मुकाबिल 2 शहजादे हैं लाला, एक नहीं तो दूसरा तख्त नशीं होगा। उसका पहला काम मेरे कत्ल का फरमान होगा। यह हकीकत सामने होते हुए कि जब मौत के साए आसपास हैं, मैं जिंदगी की हर कीमत अदा करने को तैयार हूं। समझ गए? आपके दादा सुल्तान सलीम खान को जब वो शहजादे थे सल्तनत के, तख्त नशीन कौन होगा उन्हें इसका गुमान भी नहीं था। उनके बरादरान थे, लेकिन तख्त नशीन मरहूम सुल्तान सलीम खान ही हुए। आप दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं माशाअल्लाह खिजर खैरुद्दीन पाशा। मेरी सेहत की तरफ तवज्जो देना छोड़ दें तो अच्छा होगा पाशा। आप देख रहे हैं मैं अपने मनसब पर फाइज हूं। इसके अलावा मेरा इस अजीम सल्तनत को दस्ते जालिम के रहमो करम पर छोड़ने का कोई इरादा नहीं। हर बीमारी की एक शिफा होती है, लेकिन गुरूर और तकब्बुर की नहीं होती। एहतियात से काम लीजिए। बाअदब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। अमीरुल बहर पाशा, तुम्हें यहां देखकर खुशी हो रही है। शफकत है आपकी आका। आपके हकीमों की तैयार करदा दवा से मुझे फायदा हुआ है। इसके अलावा शुक्रगुजार हूं आपके भेजे हुए शहद के लिए। सूरत हाल क्या है? बहरे रूम साकित व जामिद है आका, लेकिन कल क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। शाकलिन और फर्डिनेंड किस हाल में है नहीं मालूम। आप सुकून और राहत के साथ वक्त गुजारें। मुतमईन रहें कि हमारा बहरी बेड़ा जंग पर जाने के लिए हर वक्त तैयार है। जब तक तुम बहरी बेड़े की निगरानी कर रहे हो, मैं सुकून और राहत से रहूंगा अमीरुल बहर पाशा। आका, खैरियत तो है पाशा? क्या हुआ आपको पाशा? अमीरुल बहर पाशा, पाशा आंखें खोलें। आगा हकीम को बुलाओ। अमीरुल बहर पाशा। लुकमान आगा। सुम्बुल आगा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रुस्तम पाशा के लिए आया है। शायद कोई अहम बात नहीं है मेरे ख्याल में, समझे? मुझे तो जरा ये इसमें क्या है जरा देखूं तो। मनीषा से खबर आई है और तुम झूठ बोल रहे हो, कोई अहम बात नहीं है। ओहो, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि शहजादों की तरफ से आने वाली खबरें पहले हुर्रम सुल्तान को दी जाएंगी। तुमने जितना भी सोना लिया है ना वो हलक में फंस जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। सुम्बुल आगा, तुमने जो कहा वो मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर आका ने सुन लिया तो मेरा सर कलम हो जाएगा। तुम्हारा सर किस काम का, भले कलम हो जाए। तुम ठहरो, मैं फौरन हुर्रम सुल्तान को दिखाकर वापस आता हूँ। फौरन लेकर आना, आका के हवाले करना होगा वरना हम दोनों की जान जाएगी। ओहो, तुम फिक्र न करो, फौरन लेकर वापस आ जाऊंगा। यही ठहरो। सूरत हाल क्या है?
पुरानी बीमारी दोबारा लौट आई है आका। काफी थकन हो गई है, महल जाने की जरूरत है। मुकम्मल आराम इनके लिए बहुत जरूरी है। जो कुछ भी जरूरी है वो फौरन किया जाए। अमीरुल बहर पाशा, सबको डरा दिया आपने। मौत के फरिश्ते ने मुझे बुलवाया था आका। लगता है उसने अभी तक सबक नहीं सीखा। अगर सीख लिया होता तो मेरे रास्ते में कभी भी ना आता, वो मुझसे कभी ना उलझता। अपने महल जाओ, आराम करो। हकीम जो कहते हैं उस पर पूरी तरह अमल करो। आपका जो हुक्म आका। अल्लाह तुम्हें शिफा अता करे। आराम करो। क्या करना चाहता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी अकल खो बैठा है। शहजादे सलीम मोहतरम है क्या? हाँ, सलीम और बयासत। इस हादसे के फौरन बाद बगैर मुत्तला किए बयासत सलीम की रियासत किया था। सलीम ने इस पूरी सूरत हाल की तफसील लिखी है इस मकतूब में। हाँ? मलिका, ये क्या किया आपने? आका के पास भेजना था ये मकतूब। क्या हिसाब लगा रही हो तुम फिर से? बच्चा दुनिया में कब आएगा उसका हिसाब लगा रही हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है, चाहे सर्दियों में या गर्मियों में? फर्क पड़ता है। पैदाइश का वक्त अहम होता है। सितारे बताएंगे इसकी किस्मत। नूर बानो खातून, कैसे आई हो तुम यहाँ? चलो तुम सहन में जाओ। दिलशा खातून ने पैगाम भिजवाया है। कैसा पैगाम? नूर बानो खातून से कहो कि वो आज की शब शहजादे का इंतजार न करे। खातून चली जाओ, अपने लिए मुसीबत मोल ना लो। रुको, इसे बात करने दो। वो शहजादे के पास गई हैं। आज शब वहीं कयाम करेंगी। नूर बानो, कहाँ जा रही हो? रुको, ठहरो, होश में आओ। नूर बानो, शहजादे के पास कोई खातून नहीं है, और अगर होगी भी तो तुम क्या कर लोगी? मैंने तुमसे कहा था मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। कसम से मुझे खबर भी नहीं है। नूर बानो, रुक जाओ। शहजादे मसरूफ हैं, अभी तुम नहीं जा सकती। दिलशा अंदर है क्या? मना कर रही हूँ, यकीन नहीं आ रहा। कैसी दिलशा खातून? शहजादे काफी परेशान हैं। कोई नहीं है, वो सो रहे। पहले भी यही कहा था तुमने, लेकिन उस वक्त भी उनके पास एक खातून थी। अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। बात को ना बढ़ाओ खातून, अपने कमरे में जाओ। दिलशा, क्या हो गया? तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? मेरे झांसे में आ गई क्या? मुझसे मत उलझो खातून, वरना तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगी। शहजादे मुझसे दूर नहीं रह सकते हैं। आज नहीं तो कल यकीनन बुलाएंगे, और मैं उस दिन तक सब्र से इंतजार करूंगी। क्या कहते हैं तुम्हारे वहाँ? एक खूबसूरत कहावत है। हाँ, भूखी मुर्गी को गंदुम का जखीरा चाहिए बस।
کیا کہہ رہے ہو؟ بات کی تم نے خاتون سے؟ کوئی فائدہ نہیں، لگتا ہے یہ نکاح ضرور ہوگا، ہمیں آگے کا سوچنا چاہیے۔ وہ آئی کیوں نہیں اب تک؟ ماہدورہ سلطان کی دستبوسی کرنا چاہتی تھی۔ انجانے میں کہیں تمہارا دل تو نہیں دکھایا؟ جب سے واپس آئے ہو مجھ سے بات نہیں کی اور نہ ہی ملنے آئے۔ کتھایا میں تم نے مجھے دکھ دیا، میرا دل توڑ دیا، اس وجہ سے میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ مذاق مت کرو مجھ سے۔ تم کیوں کر میرا دل توڑ سکتی ہو جہاں؟ پھر تم کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ کہیں ریاست کے ساتھ میرے تعلق کی میں وجہ سے؟ بیمار ہوں، تمہیں معلوم ہے۔ میں اکثر و بیشتر اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکل پاتا ہوں۔ تو پھر میں آ جایا کروں؟ میں دراصل فضولی کی کتاب دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں، اس میں ایک واقعہ ہے، اسے دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ کون سا؟ وہ واقعہ جس میں زید بہشت میں دو عاشقوں کو دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے۔ وہ واقعہ مجھے بہت پسند ہے۔ زید کو بتایا جاتا ہے کہ وہ دونوں لیلا اور مجنو ہیں۔ کیا یہ کوئی خواب تو نہیں؟ کیا واقعی یہ ملاقات ایک حقیقت ہے یا میرا خیال ہے؟ اے جانو دل، آج محبت میری مہمان ہے اور اس کی خاطر جو قربان کرنا پڑا کریں گے۔ اے فضولی، ان کی خواہش تو صرف ہماری جان لینا ہے۔ آؤ محبت کی خاطر جان دو، ہرگز تردد نہ کرو۔ یہ کتنی دکھ بھری کہانی ہے مگر کتنی زیادہ حسین۔ اسے تم رکھ لو۔ آؤ۔ شہزادے، شہزادی، یہ مکتوب آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہوا، کوئی بری خبر ہے کیا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، لگتا ہے کچھ ہوا ہے۔ ماہدورہ سلطان نے ہو سکتا ہے انہیں روک لیا ہو شہزادے۔ میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ تم کیا سمجھ رہے تھے اس موقع پر میں اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دوں گی؟ خوش آمدید والدہ، آپ کی آمد سے مجھے حوصلہ مل گیا۔ کیا ہے وہ جو میں نہیں جانتی؟ پایا تخت اور اناطولیہ کی تمام ریاستوں میں شہزادے پر اپنے دل و جان قربان کرنے والے بہت سے بادشاہ، صوبیدار اور رئیس موجود ہیں، خاص طور پر علماء کرام بھی۔ یہ میرے لیے نئی بات نہیں ہے، یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہے ملکہ، شہزادے مصطفیٰ کو حرم سلطان سے، مستم پاشا سے اور یہاں تک کہ آقا سے بچانے کے لیے بہت سی اہم شخصیات یکجا ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کسی نے خود کو ظاہر نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس رستم پاشا کے طرفدار بھی موجود ہیں۔ عبداللہ اور داؤد کو انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ میں تو سمجھ رہی تھی عبداللہ کو تمہارے بابا نے بھیجا ہے یہاں۔ یہ شہزادے کے اعتماد کی خاطر کہا گیا تھا ملکہ۔ تم آخر کیا چھپانے کی کوشش کر رہی ہو مہر النساء؟ اگر وہ شہزادے کے ساتھ ہے تو یہ بات
खुलकर बता देनी चाहिए। मलिका, शहजादे हरगिज कबूल न करते ये सब। आखिर वो सल्तनत की खानदानी आलिया से ताल्लुक रखते हैं और शहजादे सल्तनत के मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत कभी नहीं देते। निकाह से इसका क्या ताल्लुक है? मैं मामूली हरगिज नहीं हूँ मलिका। समंदरों और जजायर के हुक्मरान खिजा खैरुद्दीन पाशा की पुख्तर हूँ। मेरे सियासी और अस्करी ताल्लुकात आपकी सोच से कई गुना ज्यादा हैं। बाबा, बरादरान और हमारे रईसों को चाहने वाले बेशुमार लोग मौजूद हैं। सिर्फ सियासत को मजबूत करने के लिए मेरा शहजादे के साथ निकाह हो रहा है। मैं शहजादे से मोहब्बत करती हूँ। शहजादे, अल्लाह मुकद्दर रोशन करे, तुम्हारी जिंदगी खुशगवार गुजरे। आमीन। रब तुम्हारे चेहरे पर कभी गम का साया न पड़ने दे। आमीन। शहजादी, खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। आओ बैठो, क्या बात है? वो यहाँ है। कौन यहाँ है? बियाज़त सिर्फ मुझसे मिलने के लिए पाया तख्त आ गया। मरमर महल में इंतजार कर रहा है वो। मैंने तुमसे कहा था, इश्क की आग उसे खाकस्तर कर डालेगी। क्या मुझे उसे मिलने के लिए वहाँ जाना चाहिए? बियाज़त कुथाया से यहाँ तक पहुँच गया, क्या 2 कदम उसके लिए तुम नहीं जा सकती? हुरजहां, वालिदा, आप यहाँ? मलिका, शहजादा बियाज़त मोहतरम, वो जहां सुल्तान से मिलने के लिए खुफिया तौर पर पाया तख्त रवाना हो चुके हैं। मैं उन्हें रोक नहीं सका। शहजादे के पाया तख्त पहुंचने से पहले ये मकतूब हुरम सुल्तान को मिल जाना चाहिए। फारिहा, वो जहां से अपनी नजर बिल्कुल न हटाना। खैरियत तो है शहजादी, इस तरह कहाँ जा रही हैं? वैसे तुमने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम तो मेरी सबसे बड़ी उम्मीद हो। 1-2 रोज ठहर कर वापस चला जाऊंगा वालिदा, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम इस कदर लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम जो कर रहे हो वो बहुत खतरनाक है। वापस जाना होगा तुम्हें। रात की तारीखी फैलते ही वापस चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले तुम्हें। वालिदा, हुरजहां से मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा। बियाज़त, हुरजहां कौन है ये जानते हुए भी ये बात कर रहे हो तुम? वो उस खानदान से मंसूब है। इब्राहिम पाशा और खजीना सुल्तान की दुख्तर है वो, और ये रिश्ता तुम दोनों के दरमियान होना कतई नामुमकिन है। अगर तुमने ये सोचा भी तो मैं आग कर दूंगी, और अगर आका को पता चल गया तो जान ले लेंगे वो। अफीफा खातून, मलिका, शहजादे, आका ने आपको फौरी तौर पर तलब फरमाया है। आका को मेरी आमद का बताओ। आंसू मत बहाओ मेरी जान, कोई रास्ता ढूंढ लेंगे हम। कैसे ढूंढेंगे शहजादी? सिर्फ हुरम सुल्तान को ही नहीं, आका को भी मालूम हो गया है कि वो यहाँ है। शहजादी इस वक्त मुसीबत में मुब्तला है, वो भी मेरी वजह से। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
आखिर तुम क्या कर रहे हो? जवाब दो। तुम क्या सोचकर अपनी रियासत छोड़कर मेरी इजाजत के बगैर पाए तख्त आए हो? आपको देने के लिए मेरे पास एक ही जवाब है आका। मोहब्बत, हूर जहां से होने वाली मेरी मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया। मत भूलो कि यह सबब खता से भी अजीम है। इसका अंजाम क्या होगा क्या नहीं जानते हो तुम? हूर जहां बिहान के पास वापस चली जाएगी और तुम भी कुथाया जाकर अपना सामान बांधो। तुम्हें मुल्क की सबसे दूर दराज रियासत में तैनात करूंगा, शायद उससे तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। आका कोई और सजा दे दे, कुताया में रहकर ही अपना ख्वाब पूरा कर ले। मुझसे ये ख्वाब मत छीने। खामोश! तुम निहायत बदतमीजी और बेशर्मी से मेरे सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो। चले जाओ सामने से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। जब तक मेरी सांसें बाकी हैं, मेरा दिल भी आपके लिए धड़केगा। आपको कैसे मालूम हुआ वालिदा? मेरे इस्तांबुल में होने का किससे मालूम हुआ? तुम्हें आते हुए देखने वालों ने खबर कर दी थी। तो फिर बाबा को कैसे मालूम हुआ? फातिमा सुल्तान ने बताया होगा मेरे ख्याल में। फातिमा सुल्तान क्यों बताएंगी? वो जानबूझकर हूरजहां को आग में नहीं झोंकेंगी। उस पर इतना यकीन मत करो। तुम क्या समझते हो कि वो उसे बगैर सोचे समझे यहाँ लाई होगी? जाहिर है कि मेरे बेटों पर मुसल्लत करना चाहती थी। हूरजहां का इस मसले से हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। वो मासूम है, कम से कम मेरी तरह मासूम है। तुम कैसे मासूम हो गए? मनीषा खुफिया तौर पर जाकर अपने ब्रादर को धमकी दी है तुमने। दरअसल उसने मुझे धमकी दी थी। जो कुछ उसने किया अगर सुन ले मैं हर बात जानती हूँ, लेकिन आका नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे जाने की खबर नहीं हुई है। और अब अगर पता चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें वैसे भी बार बार गलतियां करने में मजा आता है बहुत। आप पर हक है वालिदा, खता पर खता कर रहा हूं मैं। आका मुझे यूं भी जिंदान की नजर कर रहे हैं। अब आप अपने प्यारे बेटे सलीम के साथ आराम से रह सकेंगी। बयासत,